नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास में या नई क्लास में एक नया टॉपिक के साथ आते हैं। तो आज हम लेके आए हैं टॉपिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी टॉपिक्स हमारा क्लास 10 से रहेगा, क्लास 10 केमिस्ट्री से। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। फर्स्ट हमारे इसी के साथ टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Okay, now first of all the point is that what do you mean by decomposition reaction? Decomposition reaction होता क्या है? Decomposition reaction एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। So we can say that decomposition reaction are those reaction in which a single substance or we can say that the reactant split into two or more products, then this reaction is known as what? Decomposition reaction. Or we can say that this two or more product by the action of heat, light or electricity means decomposition reaction are those reaction in which a single substance or reactant split into two or more products by the action of heat, light or electricity. And then like this CaCO3, when we heat calcium carbonate, then it will form the CaO and CO2, calcium oxide and carbon dioxide. This is an example of decomposition reaction because in this reaction calcium carbonate split into two products by the action of heat. So on the basis of this split, decomposition reaction are of three types, means classification of decomposition reaction are of three types. First is the thermal decomposition. Second one is the photo decomposition. And the third one is the electrolysis. तो सबसे पहले क्या होता है कि इस क्लासिफिकेशन हमने कहा ये स्प्लिट हो रहा है किस से? हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से। हीट से अगर स्प्लिट होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड थर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन are those decomposition which takes place by the action of heat. Means those decomposition which take place by the action of heat, then such type of decomposition known as the thermal decomposition. There are so many examples like CaCO3 by heating CaO and plus CO2. Is it clear? Next one is the lead nitrate PbNO3
twice, then what will form PbO plus NO2 and plus oxygen. Is it clear? This is also an example of what? Thermal decomposition. Because this decomposition take place by the action of heat. Delta is represented the heat. Okay, मीन्स जो डिकम्पोजिशन किससे होता है? हीट से होता है, उसे क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। दो रिएक्शन देखो, इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 3 बन गया, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बन गया, और ये कैसे डिस्प्लेट हो रहा है, कैसे टूट रहा है? हीट से टूट रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ द सेकेंड इज द फोटो डिकम्पोजिशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, नाउ second one is the photo decomposition. Photo decomposition. Photo decomposition are those decomposition. Photo decomposition are those decomposition which take place. Which takes place. Those decomposition. Those decomposition which takes place. Which takes place by the action of light. जो लाइट से डिकम्पोज होता है, जैसे एग्जांपल है AgBr। अगर हम इसको कहाँ पर रख दें? लाइट में रख दें, लाइट में HV। ओके, HV के अगर हम लाइट में रख देते हैं तो ये क्या होता है? 2Ag बन जाता है और Br2 ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। तो इसमें भी एक रिएक्टेंट 2 में स्प्लिट हो गया, पर हुआ कैसे? ये हुआ लाइट के प्रेजेंस में, लाइट से डिकम्पोज हुआ। सो इसे हम क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन बोलेंगे। AgCl हुआ, ये भी लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? 2Ag प्लस Cl2। तो ये रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल हुई? किसका? फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है? बाय द एक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ थर्ड इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स those decomposition which takes place by the action of electricity। जो इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल इसका लें तो 2H2O वाटर, H2 प्लस O2 मीन्स वाटर कैसा होगा? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इसमें वाटर कैसा होता है? वाटर का नेचर इसमें होता है एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब होता है जब पानी के अंदर, वाटर के अंदर कुछ ड्रॉप्स एसिड की डाल देते हैं तो वो वाटर क्या बन जाता है? एसिडिफाइड बन जाता है, एसिडिफाइड वाटर बन जाता है। तो एसिडिफाइड वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाती है, ये टूट जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, तो इस डिकम्पोजिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें अलग अलग डिकम्पोजिशन पर हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार मिलता रहे, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ओके, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।